الرحمن الرحیم جان ستمگر اذا قلم فروا خالد قسط نمبر 2 شہباز ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ یاسمین بیگم پریسے کا سر اپنی گود میں رکھے فکر مندی سے بولی تھی۔ فضا نے وہاں پیش آیا سارا واقعہ سنا دیا تھا، جسے سن کر اور پریسے کی حالت دیکھ کر سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ سفیان اور شہباز صاحب بھی آفس سے ساری میٹنگز کینسل کرتے فوراً گھر پہنچے تھے۔ نور محل کے ہر فرد کی جان بستی تھی اپنی اس نازک سی گڑیا میں۔ وہ بن باپ کی بچی ان سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے چچا شہباز افندی جہاں اپنے باپ جیسی شفقت فراہم کرتے تھے، وہیں ان کی بیگم یاسمین افندی نے ہمیشہ اسے ممتا کی چھاؤں تلے رکھا تھا۔ نور محل میں شہباز افندی اپنے 2 بھائیوں اور ان کی فیملیز کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ شہباز افندی کے 2 بیٹے تھے، بڑا کامران افندی اور اس سے چھوٹا سفیان افندی، جس کا بچپن سے پریسے کے ساتھ رشتہ طے تھا، جس بات سے وہ دونوں باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہت پسند بھی کرتے تھے۔ جہاں پریسے سفیان کے معاملے میں بہت پرزیسو تھی، وہیں سفیان بھی اس پر جان دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی خواہش پوری کرنا سفیان کی زندگی کا اہم مقصد بن چکا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات رد نہیں کرتا تھا، چاہے خود کتنی بھی مشکل برداشت کر لے۔ شہباز افندی کے بڑے بھائی اور پریسے کے فادر ظفر افندی 21 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی بیوی نگہت بیگم کے ساتھ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ تب پریسے کی عمر صرف 2 سال تھی۔ اس معصوم سی بچی کو یاسمین بیگم اور گھر کے باقی افراد نے بہت ہی محبت اور شفقت سے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ شہباز افندی سے چھوٹے شوکت افندی تھے، جن کی وائف سمینہ بیگم اور ان کی 2 اولادیں، ایک بیٹی فضا اور بیٹا احد تھا۔ ان سے چھوٹے عامر افندی تھے، جن کی وائف سلمہ بیگم اور 3 اولادیں تھیں، عمر، طلحہ اور فجر۔ جہاں گھر کے مردوں کا کام مختلف ملکوں میں پھیلا وسیع عریض بزنس سنبھالنا تھا، وہیں گھر کی تمام خواتین ہاؤس وائف تھیں۔ یہ ہر طرح کی آزادی حاصل کرنے کے باوجود ایک بات کی اجازت ان میں سے کسی کو نہیں تھی، اور وہ تھی جاب کرنے کی اجازت۔ انجانے ایسی کیا بات تھی کہ شہباز افندی کو گھر کی عورتوں کا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ ہی اپنے آفس میں اور نہ ہی کسی اور جگہ، جس پر سب نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بچی نے اس وقت جو منظر دیکھا، اس سے خوفزدہ ہو کر گہرے صدمے میں چلی گئی ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ پری کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، جتنا ہو سکے اسے ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ شہباز افندی آنکھیں موندے یاسمین بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی پری کے ماتھے پر پیار کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ سفیان بیٹا، آپ بھی جا کر ریسٹ کر لو، کافی تھک گئے ہوگے۔ پری کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں آپ کو انفارم کر دوں گی۔ یاسمین افندی نے ایک جانب تھکے تھکے کھڑے سفیان کی جانب دیکھتے کہا، جو آج صبح ہی دبئی سے لوٹا تھا اور ذرا سا بھی آرام کیے بغیر آفس میں ہوتی کچھ اہم میٹنگز میں بیزی رہا تھا۔ نہیں ماما، آپ کو میں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا پری کو۔ وہ بالکل ٹھیک ہوں، آج جب تک پری کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہیں رہوں گا۔ سفیان وہیں پریسے کے قریب چیئر رکھے بیٹھ چکا تھا، جبکہ یاسمین پری کے لیے اس کی اتنی محبت دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ پریسے افندی تھی ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی اس سے پیار کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ سفیان کتنے ہی لمحے یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ دودھیا رنگت، پرکشش نقوش زیتون ناک، پنکھڑیوں سے گلابی نازک تراشد لب اور گول مٹول آنکھوں پر سایہ افغن گھنی لبانی پلکیں، اپنی بے پناہ خوبصورتی سے انجان وہ پیاری سی لڑکی بہت ہی صاف دل اور سادہ تھی، اس میں بناوٹ نام کو نہیں تھی۔ یاسمین بیگم مسلسل اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سفیان انجانے کتنے ہی لمحے اسے ایسے ہی یک ٹک دیکھے جاتا جب پری نے کسمساتے آنکھیں نیوا کی تھی۔ پری تم ٹھیک ہو؟ سفیان فوراً اس کے قریب آیا۔ بڑی ماما، سفیان وہ نقاب پوش، وہ خون قتل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پریسے اسی خوف کے زیر اثر بے ربط بولتی یاسمین افندی کی گود میں منہ چھپا گئی۔ پری تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جو بھی ہوا اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور جس نے وہ سب کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سفیان اس کا ہاتھ اپنی نرم گرفت میں تھامتا محبت باش لہجے میں بولا، جس پر پریسے کو اپنے دائیں ہاتھ پر بے اختیار اس نقاب پوش قاتل کا وہ سخت ترین لمس محسوس ہوا تھا، جس نے اسے ایسے پکڑا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ سفیان اور یاسمین بیگم کا پریشان چہرہ دیکھا پریسے نے بہت مشکل سے خود کو کچھ حد تک نارمل کیا تھا۔ بہت برا انسان تھا وہ، بہت بے دردی سے اس نے ان لوگوں کی زندگی چھین لی۔ بڑی ماما، کوئی انسان بھلا اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کیا؟
परीसे कोशिश के बावजूद इस शख्स की स्याह आंखें फरामोश नहीं कर पा रही थी जो उसे इस वक्त भी अपने वजूद में गड़ी महसूस हो रही थी। शबीर चौहान के घर पर डेरों के हिसाब से जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए थे। पुलिस, रेंजर्स और भी न जाने कौन कौन सी फोर्सेस को बुलवा लिया गया था। शबीर चौहान को जब से ब्लैक स्टार की जानिब से धमकी मिली थी वो मज़ीद खौफ और हड़बड़ाहट का शिकार हो चुका था। अनजाने कितनी सिक्योरिटी गार्ड्स चेंज किए गए थे। शबीर चौहान का बस नहीं चल रहा था कि किसी भी तरह अपना सर पर मुंडलाते ब्लैक स्टार्स को खुद भी को कहीं छुपा ले, मगर वो ये नहीं जानता था अब उसके गुनाहों का घड़ा भर चुका था। वो बहुत जल्द वो ब्लैक स्टार उसके सर पर पहुंचने वाले थे। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, वो लोग इनकाउंटर करके तुम लोगों को मार भी सकते हैं। शबीर चौहान और बाहर मौजूद इसकी सिक्योरिटी पर तैनात ऑफिसर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि शबीर चौहान की सिक्योरिटी का मेन इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि शाहवेज सिकंदर और मीर हाजिम सालार का बहुत गहरा दोस्त था, जिसकी मदद से उन्होंने शबीर चौहान के बंगले में दाखिल होने में 15 मिनट से भी ज़्यादा का वक़्त नहीं लगाना था। इस वक्त हमाद उनके सामने खड़ा इन्हें मुतवक्का ख़तरे से आगाह करते हुए बोला, जितने बड़े बड़े ख़तरों से हम खेल चुके हैं उसके आगे ये रिस्क कुछ भी नहीं है। तुम्हारे इस एहसान का कभी नहीं भूलेंगे। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। वो दोनों ऐसे बगलगीर होते वेटर के हुलिये में खाने की ट्राली घसीटते शबीर चौहान के बेडरूम की जानिब बढ़ गए थे। हमाद भी उनके साथ साथ ही था, जिसे देखकर सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें नहीं रोका था, मगर दरवाजे तक पहुंचते ही वो शाहवेज के इशारे पर कॉल आ जाने का बहाना करता साइड पर हो गया। शाहवेज नहीं चाहता था कि उनके साथ साथ वो भी फंस जाए। ट्राली घसीटते वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे, जहां शबीर चौहान अपने बड़े भाई के साथ बैठा किसी भी तरह मुल्क से फरार होने का प्लान तरतीब दे रहा था। इन्हें अंदर आता देखकर वो जल्दी से खामोश हुए थे। ये सब यहीं रखो और जाओ यहाँ से। शबीर ने उन दोनों को सर से पैर तक मशकूक निगाहों से देखते वहाँ से जाने को बोला था, जिस पर वो दोनों इसी खामोशी के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ गए थे, मगर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की बजाय वो इसे अंदर से लॉक करते वापस शबीर चौहान की जानिब पलटे थे। क्योंकि कौन हो तुम लोग? शबीर चौहान तकिए के नीचे रखा अपना पिस्टल तलाशता खौफ के मारे चीख उठा था। उसके साथ घर खड़े उसके भाई की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हें मारने आए थे, मगर ये बिल्कुल नहीं जानते थे तुम्हारा ये स्याहकार भाई भी यहाँ मिल जाएगा। शाहवेज अपने चेहरे से वेटर का हुलिया तब्दील करता अपनी असल रूम में वापस आया था। शबीर ने कुछ बोलना चाहा जब हाजिम को अपनी जानिब पेशकदमी करते देखकर इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वही जिनका इतनी शिद्दत से इंतज़ार था तुम्हें। हाजिम ने शबीर चौहान की कनपटी पर पिस्टल की नाल रखते इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को इत्तेसाइया निगाहों से देखा था कि क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का, क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? शबीर चौहान को इस वक्त मौत का फरिश्ता अपने आसपास मंडलाता महसूस हुआ था। हमारा नहीं मगर हमारी इस पाक सरजमीन का बहुत कुछ बिगाड़ा है तुमने, जिसका हिसाब देने का वक्त आ गया। MNA साहब, शाहवेज भी अपनी पिस्टल से अनदेखी धूल साफ करता इसके करीब आया था। चाहते क्या हो तुम लोग? शबीर चौहान को इसके सर्द जामे निगाहों से खौफ महसूस हो रहा था। अपनी गुनाहों का एतराफ़ कर लो, क्या पता तुम्हें मारने का हमारा प्लान बदल जाए। हाजिम ने पिस्टल की नाल इसके सीने के मकाम पर फेरते हुए उसे बच जाने की राह बताई थी। मैं तैयार हूँ, मगर तुम लोग फिर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। शबीर बिना एक सेकंड के लिए भी सोचे जवाब दे गया था, जिसके साथ ही हाजिम ने कैमरा ऑन करके इसके सामने रख दिया था। शबीर चौहान जैसे जैसे अपने काले धंधों का इतराफ़ करता गया, इन दोनों के चेहरे के कराह तासुरात में इजाफा होता गया था। वो बज़ाहिर मुल्क का मुअज़्ज़ज़ सियासी लीडर बना अंदर से अनजाने किन किन जराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही कर रहा था, जिनमें इंसानों की स्मगलिंग जैसा घिनौना जुर्म भी शामिल था। अपनी जान बचाने की खातिर वो सब कुछ बताता चला गया, जिसे शाहवेज ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके मेहरवस को सेंड कर दिया था। मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। शबीर चौहान ने इसके आगे हाथ जोड़ते अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी थी। तुम दोनों के पास 1 मिनट का वक़्त है, मरने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर कलमा पढ़ लो। शाहवेज की बात पर शबीर चौहान की हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। इसने फरार होना चाहा जब उन दोनों की गनों से निकलने वाली यक के बाद दीगरे 8 गोलियां इसका काम तमाम कर गई थी। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, प्लीज़ मदद करो मेरी, ये गुंडे मुझे अगवा करना चाहते हैं। वो लड़की बिखरे बाल इंतहाई रफ से हुलिये में चीखती चलाती अपने पीछे आते 3 अफराद से बचाने के लिए सड़क पर आगे आगे दौड़ रही थी। इसके एक हाथ में सफ़ेद रंग का परस था, जिसे वो इंतहाई मजबूती से थामे इतनी तेज़ रफ्तारी से भाग रही थी कि इसके पीछे
अब पाते वो तीनों अफराद इसकी रफ्तार का मुकाबला कर पाने में नाकाम होते अब हाँप रहे थे। इस लड़की की फुर्तियाँ आम लड़कियों की जैसी नहीं थी, क्योंकि वो लड़की महरवस कंवल थी। अपने नाम की सिर्फ एक ही, सबसे मुख्तलिफ और जुदा। क्या हुआ बेटी, कौन है ये लोग? वहाँ मौजूद लोग जल्दी से महरवस के करीब आते उससे पूछने लगी, ये मेरे पीछे लगे हैं, मुझे अगवा करना चाहते हैं। महरवस ने आंसू बहाते अदाकारी के अगले पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। महरवस के मुंह से अभी इतना ही निकलना था जब वो जज्बाती पाकिस्तानी अवाम बने पूरा मामला समझे महरवस के पीछे आए थे। इन तीनों सिविलियन कपड़ों में मलबूस पुलिस वालों पर टूट पड़े। महरवस आंखों ही आंखों में मुस्कुराती इन पुलिस वालों को वहाँ पिटता छोड़ जल्दी से वहाँ से पलटी थी और लोगों की भीड़ से निकलकर वहाँ से भागने के साथ साथ बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी, जब अचानक सामने मौजूद किसी चट्टान जैसी जसामत के मालिक इंसान से बुरी तरह से टकरा गई थी। महरवस ने घबरा कर नजरें उठाई थी, फिर जैसे पलटना भूल गई हूँ। तीखे नगोश अहमरी लब, गालों पर बनते घड़े, कनपटी की उभरी रगें और पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस ऊंचा लंबा वर्जिशी सरापा। महरवस से बेहतर कोई नहीं जान सकता था इस वक्त वो किस कदर ख़तरे में थी। कहीं से भी आती आंधी गोली इसका काम कर सकती थी, मगर इस वक्त वो जैसे पल भर के लिए सब कुछ फरामोश कर गई थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में खड़ा वो सहर अंगेज शख्सियत का मालिक शख्स पूरे माहौल के साथ साथ इसके दिलो दिमाग पर छा गया था। हमेशा अपने काम में हद दर्जे संजीदगी और पूरी तवज्जो से करने वाली महरवस इस वक्त खुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं पाई थी। पुलिस वालों की वर्दी तक से इसे शदीद नफरत करने वाली इस वक्त अपने सामने खड़े पुलिस वाले के आगे जैसे अपना दिल हार गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर उसे हो क्या गया था। इस शख्स के सामने वो पत्थर की क्यों हो गई थी, कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही। महरव मैम निकलें वहाँ से, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इस पुलिस वाले को आप पर शक हो चुका है। अगर इसने कुछ फासले पर पिटते अपने आदमियों को देख लिया तो ये आपको नहीं छोड़ेगा, और इस वक्त हम आपका भी अरेस्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके कान में लगे एयरपीस में मुसलसल जुनेद के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जो इसे वहाँ से भाग जाने को कह रहा था। मगर महरवस ऐसे खड़ी थी जैसे वहाँ पत्थर की मूरत बन चुकी हो। कौन हो तुम? एसपी हमदान की गंभीर भारी आवाज़ इसकी सबातों से टकराई, इसे होश की दुनिया में खींच लाई थी। लम्हे भर को तो इसे कुछ याद ही नहीं रहा, मगर अगले ही लम्हे अपने इर्द गिर्द से आते खतरे की बू सूंघती वो वहाँ हाथ में पकड़े पर्स पर गिरफ्त मजबूत किए इसके आगे से हटी थी। मगर इसके दूर जाने से पहले ही हमदान इसकी कलाई दबोच कर इसे अपने सामने कर गया था। इस लड़की का फ़कीरनियों जैसा हुलिया हमदान जैसे ट्रेंड ऑफिसर को मशकूक कर चुका था। जाने दो साहब मुझे। महरवस ने इसकी कलाई हाथ से कलाई छुड़वाने की नाकाम कोशिश की थी। वो चाहती तो एक सेकंड में खुद को आज़ाद करवा लेती, मगर वो सामने खड़े शख्स पर हमला नहीं कर पाई थी। मैम प्लीज़ फॉर गॉड सेक निकले वहाँ से, आप मेरी बात नहीं सुन रही। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जुनेद चला चलाकर जिच होता आखिर में दो टोक लहजे में बोला था। इससे पहले कि महरवस इसे रोक पाती, जुनेद ने झाड़ियों के पीछे से निकलकर हमदान के पैरों के करीब स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया था, जिसके फटते ही चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। हमदान की गिरफ्त महरवस की कलाई पर ढीली पड़ी थी। उसी लम्हे आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए जुनेद भाग कर आता महरवस का हाथ थामते अपने साथ खींच कर ले गया था। हमदान के गले तक गैस घुस चुकी थी। इसने खांस खांस कर बेहाल होते पीछे जाना चाहा था, मगर तब तक वो लोग गाड़ी में बैठकर निगाहों से ओझल हो चुके थे। मिस्टर हमदान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो फुल टाइम शबीर सर के साथ रहने को बोला गया था ना। हिबा जो 2 घंटे के अंदर को 20 बार शबीर की सिक्योरिटी चेक कर चुकी थी, हमदान की सीढ़ियों के करीब खड़े फ़ोन सुनते देखकर इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। वो शबीर सर ने मुझे रूम से बाहर रहने को कहा था। वो अपने भाई के साथ कोई अहम बात डिस्कस कर रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से वहाँ ही था, अभी फ़ोन सुनने यहाँ आया हूँ। हमदान ने अपने तासुरात बिल्कुल नॉर्मल रखते यहाँ मौजूद तमाम ऑफिसर्स में से हद दर्जे ईमानदार ऑफिसर हिबा इम्तशाल को जवाब देते कहा था। और वो जो वेटर खाना देने गए थे वो वापस आ गए? मुड़ते मुड़ते हिबा को दोबारा ख्याल आया, नहीं वो अभी वहीं देखने। हमाद के बाकी अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब अंदरूनी हिस्से से लगातार होती फायरिंग ने उन सब के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। सबसे ज़्यादा करीब हिबा ही थी, वही सबसे पहले भाग कर तेज़ रफ्तारी से अंदर दाखिल हुई थी। मगर सामने का मंजर देखकर कमरे के दरो दीवार इसकी निगाहों के सामने घूम गए थे। आज अपने कैरियर में पहली बार वो अपने किसी फ़र्ज़ में नाकाम ठहराई गई थी। शबीर चौहान और उसके भाई की खून में लथपथ पड़ी लाशें देख हिबा ने मुड़कर नफ़रत अमेज़ निगाहों से वहाँ अपने हुलिये तब्दील किए खड़े हाजिम और शावेज़ को देखा था, और उसी लम्हे गुस्से की शदीद लहर के ज़ेर असर इसने बिना सोचे समझे अपने पिस्टल को अनलॉक करते शावेज़ के आगे खड़े हाजिम पर फायर करना चाहा। जब बर वक़्त एसपी अमार ने अंदर आते इसके पिस्टल का रुख
दूसरी जानिब मोड़ दिया था। होश में रहें एसपी। हिबा, आप इन लोगों को मार कर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। अपनी जॉब से हाथ धो बैठ सकती हैं। इन्हें मारना इन्हें नहीं, सिर्फ गिरफ्तार करने की इजाज़त दी गई है हमें। अम्मार ने उसे बहुत मुश्किल से काबू करते समझाया था, जबकि अपने चेहरे पर दूसरे चेहरे वाला मास्क चढ़ाए खड़े हाजिम ने नहायत दिलचस्पी से इस लेडी ऑफिसर्स को देखा था, जो बाकी कुछ सिक्योरिटी एहलकार की तरह अंदर मतवक्के खतरे को देख कमरे में आने से घबराई नहीं थी और अब भूखी शेरनी की तरह उन पर हमला आवर होने को तैयार थी। अगर वो दोनों चाहते तो यहाँ से आराम से निकल सकते थे, मगर वो यहाँ किसी एक भी पुलिस ऑफिसर और अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ों को ज़रा सी खराश नहीं पहुँचाना चाहते थे, इसलिए अपने हथियार वहीं फेंक दिए थे। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम गद्दारों को, जो इसी पाक सरजमीन पर पल बढ़कर अब इसी को बेचने पर तुले हुए हो। हिबा का बस नहीं चल रहा था इन दोनों की गर्दनें उड़ा दे। वो हाजिम के करीब आती इसके कंधे पर अपनी पिस्टल की पुश्त एक ज़ोरदार वार कर गई थी, जो दो लोगों की जान लेकर मुसलसल मुस्कुराते उसे जहर से भी बुरे लग रहे थे। खुशी हुई आपके इरादे जानकर, वैसे अब हम भी कुछ ऐसे ही नेक ख्यालात रखते हैं। हाज़म बिना इसकी हरकत पर कोई जवाबी कार्रवाई किए धीरे से इसके करीब झुककर इसके वजूद से उड़ती महक अपनी सांसों में उतार गया था। हिबा झटका खाकर पीछे हटी थी। शावेज ने बेतासुर निगाहों से हाज़म को घूरते नज़रें फेर ली थी। कंटिन्यू जारी है।